بی بی فاطمہ کا ہم نے دیکھا تھا کہ ان کے آخری وقت میں ان کا مطلب کیسے انہوں نے بتایا تھا اور کتنے دردناک سین تھا وہ ہے. تو اس کے بعد کسی نے ہم کو یہ والی ویڈیو بھیجی کہ بھائی ان کی بھائی زندگی کا ان کا رلا دینے والا واقعہ ہے کہ بی بی فاطمہ کے صبر کا رلا دینے والا واقعہ. آپ یہ والا بھی دیکھو, آپ کو اچھا لگے گا. اب آپ لوگ بتانا کہ مطلب جو جانکاری ہے, کیونکہ یہ چینل کا ہم کو پتا نہیں ہے وہ صحیح ہے یا نہیں, ٹھیک ہے. تو 4 ملین تو ہے ان کے ویڈیو پہ, جو ہے 40 لاکھ لوگوں نے دیکھی ہے, تو ٹھیک ہی ہوگا. ٹھیک ہے, ویو تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں. دوستوں, یہ اس دور کی بات ہے جب مدینے کی گلیوں میں چاروں طرف خوشیاں بکھری ہوئی تھیں. ہر گھر سے رونق اور ہر چہرے سے سکون جھلک رہا تھا. لیکن انہی روشن گلیوں کے بیچ ایک چھوٹا سا گھر موجود تھا. ایک ایسا گھر جہاں دولت کی چمک نہیں بلکہ صبر اور شکر کی روشنی بستی تھی. یہ گھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی, جن کا دل تنگی میں بھی اللہ کے شکر سے لبریز رہتا. اس صبح مدینے کے آسمان پر ایک عجیب سی خاموشی پھیلی ہوئی تھی. ہوائیں ٹھنڈی تھیں, لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کا سناٹا کچھ اور ہی کہانی بیان کر رہا تھا. پوری رات عبادت میں گزر چکی تھی. سجدے کی مٹی اب بھی ان کی پیشانی پر جیسے نور بکھیر رہی تھی. صبح اٹھیں تو انہوں نے دیکھا کہ گھر میں کھانے کا ایک دانہ تک موجود نہ تھا. صرف ایک پیالے میں تھوڑا سا پانی رکھا ہوا تھا. انہوں نے وہ پانی اٹھایا, بسم اللہ کہا اور دھیرے سے پی لیا. پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کی, اے اللہ, اگر تنگی ہے تو بھی تیری رحمت ہے, اگر نعمت ہے تو بھی تیری رحمت ہے. ہمیں آزما, مگر ہمارے صبر اور یقین کو اور مضبوط رکھنا. اسی وقت مسجد نبوی سے فجر کی اذان کی پرسکون آواز گونجنے لگی. پورا مدینہ اس صدا سے روشن ہو گیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اٹھ کر وضو کیا اور ساتھ میں نماز ادا کی. سجدے میں ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے. ایک طرف تنگی کا عالم تھا, دوسری طرف دلوں میں اللہ پر یقین کی روشنی. نماز مکمل ہونے کے بعد حضرت علی نے حضرت فاطمہ کی طرف دیکھا اور فرمایا, فاطمہ, میں کام کی تلاش میں جا رہا ہوں, اللہ سے دعا کرنا کہ میری محنت قبول ہو جائے. حضرت فاطمہ نے سر جھکا کر فرمایا, آپ فکر نہ کریں, اللہ کبھی محنتی کو مایوس نہیں کرتا. جائیے, انشاءاللہ آپ روزی لے کر ہی لوٹو گے. اتنا کہہ کر حضرت علی دھوپ سے تپتے ریگستان کی طرف نکل پڑے. ننگے پاؤں ریت ان کے تلووں کو جلا رہی تھی, لیکن دل میں صرف یہی خیال تھا کہ بچوں کے لیے کچھ لے کر لوٹنا ہے. ادھر گھر میں چھوٹے حسن اور حسین اپنی امی جان کی طرف دیکھ کر معصوم آواز میں بولے, امی جان, پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے, ہمیں کچھ کھانے کو دیجیے نا. یہ سن کر حضرت فاطمہ کی آنکھیں بھر آئیں, لیکن انہوں نے بچوں کو گلے سے لگایا اور مسکراتے ہوئے فرمایا, میرے شہزادوں, دنیا تو ایک امتحان ہے, صبر کرو, انشاءاللہ تمہارے ابا جان کچھ لے کر ضرور لوٹیں گے. حضرت حسن نے معصومیت سے کہا, امی جان, اگر ابا خالی ہاتھ لوٹے تو؟ حضرت فاطمہ نے ان کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا, بیٹا, کوئی بھی کبھی اللہ کی رحمت سے خالی نہیں لوٹتا. ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شہر کی گلیوں میں روزگار کی تلاش میں گھوم رہے تھے. انہوں نے ایک صحابی سے عرض کیا, بھائی, اگر کوئی کام ہو تو مجھے بتا دیجیے, میرے گھر کے چھوٹے بچے بھوک سے پریشان ہیں. صحابی نے افسوس جتاتے ہوئے کہا, یا علی, اللہ گواہ ہے, اگر میرے پاس کام ہوتا تو سب سے پہلے آپ کو دیتا, لیکن میرے گھر کا چولہا بھی کئی دنوں سے ٹھنڈا ہے. حضرت علی نے ان کا ہاتھ تھاما اور فرمایا, صبر کرو میرے بھائی, اللہ کسی کو اکیلا نہیں چھوڑتا. کچھ دیر بعد حضرت علی کو یاد آیا کہ شہر کے کنارے ایک امیر تاجر رہتا ہے. وہ اس کے پاس پہنچے اور فرمایا, بھائی, کیا تمہارے پاس کوئی کام ہے؟ میں محنت کے لیے تیار ہوں. تاجر نے کہا, اگر تم میرے کھجور کے باغ میں کام کرو تو محنت آنے میں میں تمہیں پیسے کی جگہ کچھ کھجور دے دوں گا. حضرت علی نے کچھ دیر سوچا اور فرمایا, منظور ہے, میرے بچوں کے لیے 2 لقمے ہی میرے لیے دنیا سے بڑھ کر ہیں. انہوں نے کئی گھنٹے دھوپ میں محنت کی اور جب کام مکمل ہو گیا تو تاجر نے انہیں محنت آنے میں کچھ کھجور دے دیے. کھجور ہاتھ میں آتے ہی حضرت علی نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا. پھر کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد وہ اپنے گھر لوٹ آئے. انہوں نے وہ کھجور حضرت فاطمہ کو دے دیے. بچے دوڑتے ہوئے ان کے پاس آئے اور بولے, ابا جان, کیا لائے ہیں؟ حضرت علی نے مسکراتے ہوئے فرمایا, بس کچھ کھجور لایا ہوں, مگر اس میں اللہ کی برکت ہے. پھر سب لوگ وہ کھجور کھانے ایک ساتھ بیٹھ گئے. تبھی دروازے پر دستک ہوئی.
हजरत फातिमा उठी और दरवाजा खोला। बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी आवाज कांप रही थी, चेहरे पर भूख और कमजोरी साफ झलक रही थी। उसने गहरी सांस लेकर कहा, बेटी, मैं कई दिनों से भूखा हूं, अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ खाने को दे दो। यह सुनकर हजरत फातिमा की आंखें भीग आईं। उन्होंने हजरत अली की तरफ देखा और नरमी से फरमाया, ऐ मेरे सरपरस्त, ये बाबा कई दिनों से भूखे हैं और अल्लाह के नाम पर कुछ खाने को मांग रहे हैं। क्यों ना हम ये खजूर इन्हें दे दें और हम सब लोग पानी पीकर ही गुजारा कर लें। हजरत अली ने ताज्जुब से फरमाया, फातिमा, हमारे बच्चे भी भूखे रह जाएंगे। हजरत फातिमा ने मुस्कुराते हुए फरमाया, अली, अगर हमारे बच्चों ने भूख सह ली तो अल्लाह उन्हें सवाब देगा, और अगर इस मिस्कीन की दुआ लग गई तो ये हमारे लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत होगी। ये सुनकर हजरत अली ने बिना कोई सवाल किए सारे खजूर उस बाबा को दे दिए और सब लोग सिर्फ पानी पीकर ही सो गए। अगले दिन फिर वही इम्तिहान लौट आया। सुबह के वक्त हजरत अली रोज की तरह काम की तलाश में शहर की तरफ निकल पड़े। दिन भर उनका घर भले तंगी से घिरा रहा, मगर उस घर की फिजा में सब्र और शुक्र की खुशबू फैली हुई थी। शाम ढली तो थके कदमों के साथ हजरत अली घर लौटे। इस बार उनके हाथ में कुछ आटा था। घर में दाखिल होते ही हजरत फातिमा ने खुशी से अल्हम्दुलिल्लाह कहा और उसी आटे से चूल्हे पर रोटियां बनानी शुरू कर दी। इतने में छोटे हसन और हुसैन अपनी मासूम आंखों से अम्मी जान की तरफ देखते हुए बोले, अम्मी जान, आज हमें खाना मिलेगा ना? ये सुनकर हजरत फातिमा मुस्कुराईं, उनके सिरों पर हाथ फेरा और प्यार से फरमाया, मेरे लाल, अल्लाह पर भरोसा रखो, जितना है उसी में बरकत है। घर में बस कुछ रोटियां और पानी मौजूद था। सबने बैठकर एक एक रोटी लेना शुरू ही किया था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खुला तो बाहर एक मिस्कीन खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा भुखमरी से जर्द पड़ चुका था और होंठ प्यास से सूखे हुए थे। वो कांपती आवाज में गुजारिश करते हुए बोला, या अहले बैत, मैं 3 दिन से भूखा हूं। सुना है कि आप लोग अल्लाह की राह में सखावत फरमाते हैं। अगर आपके पास कुछ खाने को है तो अल्लाह के नाम पर मुझे भी दे दीजिए। ये सुनकर हजरत फातिमा का दिल पिघल गया, उनकी आंखों में रहम आ गया। उन्होंने हजरत अली की तरफ देखते हुए नरमी से फरमाया, ऐ मेरे सरपरस्त, जो रोटियां हमारे पास हैं उन्हें इस भूखे मिस्कीन को दे दीजिए। हजरत अली के दिल में बच्चों का ख्याल आया। उन्होंने फिक्रमंद होकर फरमाया, फातिमा, फिर हमारे मासूम बच्चे क्या खाएंगे और तुम खुद कैसे गुजारा करोगी? यह सुनकर हजरत फातिमा के होंठों पर सुकून भरी मुस्कान आ गई। उन्होंने फरमाया, या अली, भूख की तकलीफ हमें भी है, मगर इस मिस्कीन के सीने में लगी आग हमसे कहीं ज्यादा तेज है। हम इस दुनिया की आराम और पेट भरने के लिए नहीं आए, बल्कि अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए आए हैं। हजरत अली ने हजरत हसन और हजरत हुसैन की तरफ देखा और नरमी से फरमाया, ऐ मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम सब्र कर लें तो अल्लाह हमें इससे कहीं बेहतर नेमत अता करेगा। बच्चों ने मासूम आंखों से अब्बा जान की तरफ देखा और फरमाया, ठीक है बाबा जान। ये सुनते ही हजरत अली की आंखें नम हो गईं। फिर उन्होंने वो सारी रोटियां उस भूखे मिस्कीन को देते हुए फरमाया, हमारा मकसद सिर्फ अल्लाह की रजा और उसकी खुशी है। घर के अंदर अब सिर्फ थोड़ा सा पानी रह गया था। हजरत फातिमा ने वो पानी पीकर अपनी प्यास बुझा ली। उनके चेहरे पर भूख की थकान तो थी, मगर आंखों में सब्र और दिल में अल्लाह पर यकीन था। हजरत अली उन्हें देखते रहे और दिल ही दिल में सोचने लगे, ए फातिमा, कैसी बड़ी आजमाइश है ये, मगर तुम खुद भूखी रहकर भी दूसरों को खिलाने में कभी संकोच नहीं करती। यकीनन अल्लाह ताला तुम्हारी इस सखावत को अपनी बारगाह में जरूर कबूल करेगा। उसी वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म देते हुए फरमाया, ए जिब्राइल, मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा ने जो सब्र और इखलास दिखाया है वह लाजवाब है। जाओ उनके घर में जन्नत का रिज़्क पहुंचाओ। हुक्म मिलते ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में आसमान से जमीन पर उतर आए। उनके हाथों में जन्नत का खुशबूदार खाना था। वो हजरत अली के घर के दरवाजे पर पहुंचे और आवाज दी, या अहले बैत। हजरत अली ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने एक नूरानी चेहरे वाले शख्स खड़े थे। उन्होंने पूछा, आप कौन हैं? उस शख्स ने जवाब दिया, मैं अल्लाह की तरफ से भेजा गया फरिश्ता हूं।
जिस तरह तुमने भूखे रहते हुए दूसरों को खिलाया, उसी तरह अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत से रिस्क भेजा है। हजरत अली ये सुनकर रो पड़े और बोले, सुभान अल्लाह, हमारा रब कितना रहम करने वाला है। उन्होंने वो खाना अंदर लाकर हजरत फातिमा से कहा, देखो फातिमा, अल्लाह ने तुम्हारे सब्र का कैसा इनाम भेजा है। हजरत फातिमा धीरे धीरे पास आई। जब उन्होंने उस खाने को देखा तो उनकी आंखों से आंसू छलक उठे। वो कहने लगी, ऐ मेरे रब, तू कितना मेहरबान और करीम है, ये तेरी रहमत और तेरी इनायत है। इतने में हजरत हसन और हजरत हुसैन मासूमियत से बोले, अम्मी जान, ये खाना कहां से आया। हजरत फातिमा ने उन्हें गले लगाते हुए फरमाया, बेटा, ये जन्नत से आया हुआ खाना है, अल्लाह ने तुम्हारे सब्र का इनाम दिया है। हजरत फातिमा ने मुस्कुराकर अपने मासूम बच्चों से फरमाया, मेरे शहजादों, ये खाना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अपनी रहमत से जन्नत से भेजा है। ये सुनकर दोनों बच्चे खुशी से चमक उठे और मासूमियत से बोले, अम्मा जान, क्या ये सच है। हजरत फातिमा ने उनके सिर सहलाते हुए फरमाया, बिल्कुल बेटा, ये अल्लाह की रहमत और करम का पैगाम है। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। फिर पूरा घर उस पाक रिज़्क को खाने के लिए एक साथ बैठ गया। मगर ये खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं था, ये तो अल्लाह की मोहब्बत और उसकी रहमत का नजारा था। दूसरे दिन ये खबर पूरे मदीना में फैल गई कि हजरत फातिमा के घर में जन्नत से खाना आया है। बहुत से लोग हैरान रह गए। किसी का ईमान और मजबूत हुआ तो कोई खुशी से रो पड़ा। हर कोई यही सोच रहा था, ये कैसी करामात है, कैसी नफासत और कैसी रहमत है अल्लाह की, जो अपने हबीब के घराने पर इतनी बड़ी नेमत बरसा रहा है। कुछ लोग दौड़कर मस्जिद नबी पहुंचे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हाल सुनाया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और उनकी आंखों से नूर झलकने लगा। उन्होंने फरमाया, ऐ लोगों, अल्लाह ताला जब अपने बंदों को आजमाता है तो सब्र करने वालों के लिए ऐसी नेमतें रखता है जिनका अंदाजा इंसान की अक्ल नहीं लगा सकती। हजरत फातिमा और हजरत अली ने भूख में भी दूसरों को खिलाया और अल्लाह ने उनको ऐसा रिज्क दिया जो दुनिया और दुनिया की नेमतों से कहीं बढ़कर है। यह सुनकर सहाबा इकराम की आंखें भी नम हो गईं। सबको एहसास हुआ कि यह महज खाना नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से सब्र और शुक्र का इनाम है। उस दिन के बाद मदीना में हजरत फातिमा के घर को लोग एक मिसाल की तरह देखने लगे। जब भी कोई गरीब, यतीम या मुसाफिर उनकी चौखट पर आता तो उन्हें यकीन होता कि वो यहां से खाली हाथ नहीं लौटेंगे। हजरत अली अक्सर रात को घर लौटते हुए सोचते, ये कैसी कुदरत है मेरे मालिक की, हम भूखे भी रहते हैं मगर हमारी मेज पर नेमतें उतर आती हैं। हम तंग दस्ती में भी होते हैं मगर दिल में सुकून और अल्लाह पर यकीन होता है। और हजरत फातिमा अपनी सादी सी जिंदगी में भी अल्लाह का शुक्र अदा करती। वो अक्सर कहा करती, अली, जिसको अल्लाह दे उसको और किसी की जरूरत नहीं रहती। हमारी असल दौलत यह है कि अल्लाह हमसे राजी है। इस वाकये का असर सिर्फ उनके घर तक नहीं रहा, पूरा मदीना बदल गया। लोगों के दिलों में भूख और तंगहाली में भी सब्र पैदा होने लगा। जो पहले अल्लाह से शिकायत करते थे वो अब कहते, या अल्लाह, अगर हजरत अली और हजरत फातिमा जैसी अजीम हस्तियां भूखे रहकर भी आप पर भरोसा रख सकती हैं तो हम क्यों नहीं। एक रोज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया, ऐ मेरे दोस्तों, ये दुनिया तो आजमाइश की जगह है। यहाँ कभी भूख है, कभी तंगहाली है, कभी दर्द है, लेकिन जो सब्र करता है अल्लाह उसकी ऐसी मदद करता है कि सारे आसमान और जमीन के खजाने भी उसके सामने कम पड़ जाते हैं। सहाबा ने यह सुना तो उनके दिलों में ईमान और मजबूत हो गया। आज भी जब यह किस्सा सुनाया जाता है तो दिल कांप उठता है। सोचिए, एक छोटा सा घर जिसमें भूख का आलम था, मगर वही घर अल्लाह की कुदरत से जन्नत की खुशबू से भर गया। यह वाकया हमें सिखाता है कि भूख में भी सब्र करना चाहिए, तंगहाली में भी शुक्र अदा करना चाहिए और अल्लाह पर पूरा यकीन रखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। आखिर में जब लोग इस वाकये को याद करते तो उनकी आंखें नम हो जाती और दिल से यही दुआ निकलती, ऐ अल्लाह, हमें भी हजरत अली और हजरत फातिमा जैसा सब्र अता कर, हमें भी अपनी रहमतों में से हिस्सा दे और हमें भी उन लोगों में शामिल कर जिन्हें तू जन्नत की नेमतों से नवाजे। इस तरह हजरत फातिमा और हजरत अली का यह वाकया सिर्फ उनके घर की दास्तान नहीं रहा, बल्कि पूरी उम्मत के लिए एक ऐसी रोशनी बन गया जो आज तक लोगों के दिलों में जिंदा है और उनके
ईमान को मजबूत करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। वो इन्होंने कहा है कि जितना हो ना उसी में सब्र करना चाहिए। जैसे कि जॉन एलिया साहब का एक छोटा सा शेर है कि जो नहीं मिला वो खूबसूरत था, है। ये जो मिल जाता है ना लोगों को उसकी कदर नहीं होती, जो नहीं मिला वो खूबसूरत था, है। मतलब एक इंस्टाग्राम पे रील भी है आजकल बहुत वायरल हो रही है कि अगर कोई 200 साल पहले का राजा आज के समय में आ जाए, नॉर्मल लोगों की जिंदगी देखे ना, कि लोग घर पे बैठे बैठे एसी की हवा ले रहे हैं या पंखा खा रहे हैं, या जो आज के लोग खाना खा रहे हैं, वो उस समय नहीं था ना, वो सुविधा ही नहीं थी उस समय। उस समय तो मतलब वो चीजें एक जो राजा था उसको भी मतलब इतनी गर्मी में इतनी ठंडी हवा नहीं मिलेगी, जो आज खाना खा रहे हैं वो नहीं मिलेगा, वो वैसा खाना है कि नहीं, या कुछ भी खा सकते हैं आज। अच्छे से रह सकता, मतलब कैसे भी रह रहा है, ठीक है। मतलब सब थोड़ी ना अंबानी जैसे रह सकता है कि नहीं। मतलब उस समय के जो अंबानी थे वो आज की लाइफ देखेगा नॉर्मल इंसान की तो बहुत बढ़िया उस हिसाब से। तो वही है, जिसके पास जितना उसमें उसको सब्र करना चाहिए। बिल्कुल। मम्मी बोल रही थी वो बकरी बंधी थी, बकरी क्यों नहीं खा ली, वो एआई में दिखा दी, उस समय नहीं होगी बकरियां। नहीं, मैं AI सोच रही थी ना जब इतने जानवर उनके पास है, बकरियां हैं, तो मैं कहा उनको पका के खा लेते। नहीं वो अच्छा, वो दिखाई है, रखे थे हाँ वो ऐसे। एआई दिखा देते हैं वो। लेकिन ना सब्र बहुत बड़ा दिखाया फातिमा का। मतलब कैसे वो दिन भर काम करके अपने बच्चों के लिए खाना जुटा कर लेके आते, और जैसे ही खाने बैठते ना निवाला, मुझे भी डर लगता कि कोई मांगने आएगा। मतलब बच्चों में इतना सब्र था कि जैसे माँ समझा देती है, भाई बेटा कोई बात नहीं, उनको पहले देना, उनकी भूख हमारे से ज्यादा है, तो मतलब उनको दे देते और खुद पानी पी के सो जाते। तो ये बहुत बड़ी बात है। मतलब हर माँ ये सोचती है मेरे बच्चों का पेट भर जाए बस, तो माँ का पेट भर गया। लोगों के पास खाने को नहीं था, कितनी गरीबी थी, और लोगों मतलब ने काटी है। अल्लाह ना उनकी, सोचो तो मतलब अल्लाह उनकी परीक्षा ले रहा था और इतना सब्र देख रहा था। बाकी सब और ठीक था। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, लाइक के सब्सक्राइब करें, बाय।